Hello friends, welcome to the Sabki Cinema program. But before that we start, I would like to thank Mr. Sen Gupta for giving me this opportunity. And I'm Usha Didi, and this is the first time I'm anchoring a program. Please friends, bear with me. माटी का पुतला हूँ पर आपसे जुदा नहीं हूँ. कोई गलती हो तो माफ करना. इंसान हूँ, खुदा नहीं हूँ. Today, all the participants have come up with a variety of interesting subjects. I'm sure you are going to enjoy every bit of it. The first speaker I'm going to invite is a breath of fresh air. She's a rare combination of beauty and talent, Madam Hemlata ji. I think you all are going to love what she is going to say. Some new kind of diet which is very good for your health. You will enjoy that and benefit from it. Madam Hemlata. Good. Thank you, Ushadi. Thank you very much. Um, a, a very good evening to you, all my dear friends. Um, we have all been hearing about the word kindness, but kindness to all other species other than human beings is also very important, isn't it? Do you love animals? Do you feel pain when you see them hurt or abused? I do so. So today I have come with a topic which is very relevant and important in today's day and age. I'm going to say a few words on animal rights and living a vegan or plant-based lifestyle. Also this month, I completed 2 years of being a vegan. If you care about animals and how they are treated, I urge you to consider turning vegan or plant-based. So friends, what is veganism? Veganism is a lifestyle wherein we refrain from consuming or using any animal products, for example, meat, dairy, eggs, honey, and use of silk, fur, wool, and leather. Veganism is compassion and kindness because the belief is that all life is equal and has a right to live. My journey started when some members of my family started adopting this lifestyle of kindness and educated me on how we indirectly contribute to animal cruelty and violence by using and consuming animal products. Although we are born vegetarians, our consumption of eggs and milk products alone has contributed to immeasurable mistreatment, abuse, and death of animals such as chickens and cows. If you go to a dairy or poultry farm, you will be shocked to learn how these animals are mass bred and tortured to produce milk and eggs. Do you know that humans are the only species that continue to drink the milk of another species? In dairy farms, cows are forced to have babies so that they can keep producing milk that is stolen from them so that we can drink it instead of her baby. And in many cases, the male calf is killed because he is of no use to the dairy industry and he is not capable of producing milk. As a mother of a male child, I could not bear to hear about this suffering. So I decided to nourish my body, mind, and soul with kindness and foods from nature that cause no harm. As a result, I'm healthier both emotionally and physically, and I'm also spiritually liberated and at peace because I'm showing kindness and empathy through my actions. Consuming animal products is the #1 cause of leading ailments such as heart disease, diabetes, cancer, all sorts of allergies, and inflammation. How can products coming from animals, when taken without their permission and which has their suffering in it, be healthy for you?
adopting a lifestyle that is free of animal torture and use of animal products is not just good for your health, but is also good for the earth. Do you know that about 80% of the world's largest green cover, the Amazon rainforest, has been cleared out to grow soy and corn feed? This is not used for feeding the starving humans across the world, but is used for feeding animals that are then tortured for milk and meat. We are a country that loves our milk and milk products. What festival has ever been complete without kheer or sweets made of milk? You will be shocked to know that India is not just the world's largest milk producer, it is also one of the largest exporters of beef in the whole world. Is this how we should be treating our mother cows? Clearing out large green areas of pastures for animal agriculture had devastating effects on the climate, causing global warming and climate change. You all already know how different parts of the world are facing a global crisis such as forest fires, torrential rains, heat waves, floodings, etc., etc. So, coming to the end of my talk. So friends, ask yourselves, do we want our bodies to be a garden or a graveyard? The choice is yours. What will you do? Thank you for bearing with me. Excellent, Hemlata. We all are going to benefit from this. It will be good for the animals also. I Thank you think so we will much. all improve their health also with this. Thanks so much. Thank you so much. कविता लिखने वाले कोमल हृदय के होते हैं। कोई भी कवि लिखने के लिए तब तक कलम नहीं उठाता जब तक उसकी स्याही प्रेम की आहों से सराबोर नहीं हो जाती। ऐसे ही एक कवि हैं हमारे बीच में, मिस्टर J.L. चौधरी। I will invite him to recite his poem. Mr. J.L. चौधरी। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही। आज उषा दीदी ने शुरुआत की थी तो बोला कि माटी का पुतला हूँ, खुदा नहीं। उसी खुदा से मेरी दरकार है और उस खुदा से दरकार करने के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। लिखा है कि न खुदा से कभी मिला हूँ, न देखा है उसकी रूहानी सूरत। न खुदा से कभी मिला हूँ, न देखा है उसकी रूहानी सूरत, पर खुदाए नूर खुदा बख्श से मिला जरूर हूँ मैं। खुदा बख्श कहते हैं सदगुरु को। पर खुदाए नूर खुदा बख्श से जरूर मिला हूँ मैं। उससे तो मिला हूँ मैं, पर उसमें मिला हूँ मैं ये मैं नहीं जानता। उसमें मिला क्यों हूँ, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि गुरु और शिष्य का मिलन ऐसा होना चाहिए जैसे बूंद और सागर का। बूंद और सागर जब मिलते हैं तो दोनों का रूप एक ही हो जाता है। इसलिए लिखा कि उससे तो मिला हूँ, पर उसमें मिला हूँ ये नहीं जानता। ये तो उसे ही मालूम है, ये जानने की मेरी औकात भी नहीं है। पर यकीन जानो ए मेरे अजीज दोस्तों, जब भी सूरत हाल बदले, सेहत बिगड़ी या जेब तंग हो गई या अपने ही बेगाने हो गए, तब तब खुदा खुद पास आया मेरे, शक्ल सूरत जैसी भी हो। तब तब खुदा पास आया मेरे पास, शक्ल सूरत जैसी भी हो। आकर माला माल कर गया मुझे, छीन कर मुझसे सारे दुख और गम। एक ही बात याद रखी मैंने जिंदगी में अब तक के सफर में। एक ही बात याद रखी मैंने जिंदगी में अब तक के सफर में,
वो तो रहमत का दरिया है, जरूर बाहों में भर लेगा जब कभी आवाज में मेरे कशिश हो, तड़प हो, पुकार हो और यह फरियाद हो। आवाज में मेरे कशिश हो, तड़प हो, पुकार हो या फरियाद हो, जज्बा मेरा दामन फैला के उसकी अदालत में अर्जी दाखिल करने का हो। बस नजरें झुकी, आंखों से एक कतरा भी ढला तो वो रुकता नहीं, दौड़ पाता है, दौड़ जाता है बचाने को अपने हर एक बंदे को। रुकता नहीं वो, दौड़ पड़ता है बचाने को अपने हर एक बंदे को। शर्त एक ही है, सुनिएगा, शर्त एक ही है वो पाने की, शर्त एक ही है जो पाने की ख्वाहिश रखो, वैसा देने का जज्बा भी रखो। शर्त एक ही है जो पाने की ख्वाहिश रखो, वैसा ही देने का जज्बा रखो। वास्ता है उस परवरदिगार का, वास्ता है उस परवरदिगार का, कुछ पाने के लिए अपने बर्तन को खाली रखो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी जी, मुझे पूरा विश्वास है आप खुदा से भी मिल आए होंगे, क्योंकि ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि हर जगह पहुंच सकता है, कहीं भी पहुंच जाता है। मुझे पूरा विश्वास है। वेरी इसकी नाइस। दास्तां अगले बार सुनाऊंगा। यस। सो नाउ कम्स मिस्टर आनंद सक्सेना, जिनके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती है, हमेशा एक मुस्कान लगी रहती है। I have heard that people who always keep a smile on their faces, they are very well treated by life. मगर कल्पना के घोड़े की कोई लगाम नहीं होती है, वो तो दौड़ता ही रहता है। और ये भी सच है कि कोई भी योजना बिना कल्पना के यानी इमेजिनेशन के कभी तैयार ही नहीं हो सकती। तो इसको सार्थक करने के लिए आ रहे हैं हमारे मिस्टर आनंद सक्सेना। मिस्टर आनंद सक्सेना, प्लीज। थैंक यू उषा दीदी। आई एम ऑडिबल? आपकी स्माइल हमेशा रहती है, परमानेंट। बहुत अच्छा लगा। मेरा आज टॉपिक इमेजिनेशन पे है। हालांकि छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा बोलता हूँ। मैन इज अ क्राउन ऑफ क्रिएशन. He has attained this status only because of imagination. Reasoning, thinking, memory, willpower, concentration, they have been given importance for centuries. Imagination, it was ignored by the layman, thinking that it is the arena of writers and artists. But it is not like that. Now, imagination, anybody, whether he is in service, whether he is businessman, whether he is a doctor or engineer, anybody can imagine the things. And as a matter of fact, imagination is a faculty of our mind, and it may be developed to our advantage. Prehistoric men used their imagination and attained unimaginable success in their life. We enjoy the fire, benefit of wheels and cloths. Man has changed bricks into clay into bricks, and he has changed cotton into cloth. And afterwards, scientists, they devised pulleys, wheels, radio, television, satellite, so many things. They are the result of imagination. But this imagination is different from this thing. जो आकाश में घोड़े उड़ाते हैं हम लोग, उससे ये अलग थी. Building castles in the air, it is a different thing. It should be used only in positive direction and useful way. For developing our powers of imagination for creative purpose, we read books on history, geography, science, fictions, novels, everything. And then we start imagining what would have happened at that time. Suppose we read Mahabharata, we can imagine what would have happened at that time.
like that. And whenever we read some book or even some fictions also, then also there is a khaka imagination before our eyes. Now, whenever we see a thing of common use, we can use our imagination. Anything in your house, you can use your imagination to decorate it. Where you can imagine the color of your wall, which will suit your house, where the flower vase should be put, like that. You can. And if you are poor in imagination, you can engage some other person who will imagine on your behalf, and they are called interior decorators. They will tell you which wall should be painted white or yellow, where the flower vase should be put, where the painting should be fixed, like that. But it's not like that. Most of us, we can imagine very positively and all. And especially ladies, they can use their imagination for making different type of recipes. And once they imagine it, they can implement it while making it, and they can give it to their spouse. They would be happy, she would be happy. Even for gents, we can use our imagination in our workplace, in our profession, in our business. We can suppose, for example, we are in the bank, we can imagine the customers are coming, they are sitting under the fan in a hot season. So we can imagine once we are sitting in the air-conditioned chamber, they should also be put comfortable, kept comfortable, and whole bank should be air-conditioned. That was the imagination. Now most of the banks, they are air-conditioned. So these are all the results of imagination. Now, there are many geometrical forms. You all know triangle, square, circle, and all. From my point of view, circle is the most important imagination of the things, because without circle, we cannot imagine anything on this earth, whether it is transport, whether it is satellite, or it's a television. Nothing is possible if the circle has not been invented. Now, imagination disposes of everything. It creates beauty, justice, and happiness, which are everything in the world. And last, one example I will give you. You would have seen Samta Madam's skit, आजादी नहीं मिली, हालांकि उन्होंने पहले ही बहुत स्किट बनाई है, लेकिन इस स्किट में उन्होंने इमेजिन किया एक 7-8 साल की लड़की है, she is sitting in a school bus and her parents are killed before her eyes. उसकी साइकोलॉजी कैसी होती है, उसका सोचने का तरीका कैसा हो जाता है. Only imagining all these things, she acted in that skit, and that was a fantastic, you all know. So it was all result of imagination. So, but imagination should be used only for creative purpose, not for destructive. Not like that, just like terrorist thing. If you purchase machine gun, you lose this thing, that thing. That should not be there. So it should be done, which is good for our family, for our society, and for our nation. That's all, madam. Thank you very much. Very good. Imagination has no limits. It needs no bounds. भारत में जितने भी धर्म गुरु हो चुके हैं, उन सब में गुरु नानक देव जी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है. He was the founder of Sikhism, and he was always promoting humanity and brotherhood. आज हम उन्हीं की टीचिंग्स के ऊपर एक भजन कुसुम जुगेशिया मैडम से सुनेंगे. कुसुम जुगेशिया जी. Thank you, Usha. Anandji spoke so well about the epitome of creation, that's the human being. And the same human being does mistakes. And this bhajan, what I'm going to sing now, is how we have to ask God to forgive those mistakes. Sache Paatshah meri baksh khata मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना. सच्चे पातशाह मेरी बख्शो खता मैंने माना,
तू बेअंत तेरा अंत न जाना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना। तेरे दर पे सवाली जो आवे, मुँह मंगिया मुरादा पावे। तेरे दर पे सवाली जो आवे, मुँह मंगिया मुरादा पावे। मैं भी आया शरणी, लाओ अपनी चरनी बिरद पछाना। तू बेअंत तेरा अंत न जाना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना। दीन छोड़ दुनिया संग लागा, नाम न जपिया तेरा मैं अभागा। दीन छोड़ दुनिया संग लागा, नाम न जपिया तेरा मैं अभागा। कोई गुण न पले, नरक न मैनू चले पाप कमाना। तू बेअंत तेरा अंत न जाना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना। तर गए पापी तेरा नाम रट के, कट जाए 84 बारी नाम जप के। तर गए पापी तेरा नाम रट के, कट जाए 84 बारी गुरु जप के। बिसर नाही दाता बख्शो चरणों का प्यार, नाम जपाना। तू बेअंत तेरा अंत न जाना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना। रखना मैनू कुसंग तो बचा के, हरि जी रखना गले ना लगा के। रखना मैनू कुसंग तो बचा के, हरि जी रखना गले ना लगा के। हरदम बंदगी करा तेरी हाजरी भरा, जब तक प्राणा। तू बेअंत तेरा अंत न जाना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्शो खता, मैंने माना। तू बेअंत तेरा अंत न जाना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना। थैंक यू। Very beautiful bhajan कुसुम जी, very nice, soulful bhajan. बहुत Thank you. अच्छा लगा, very nice, Thank you. very peaceful and calming. Now we can always sum up Guru Nanak Dev's teaching in 3 short sentences. One is kirat karo. He always says ki work hard with honesty. And naam japo. Always remember God. And vand chako means whatever bounty or riches you got from the God, you must always share with the needy people. ये उनकी 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट टीचिंग्स है जिनके ऊपर हम लोग को उनके चलना चाहिए। तो लाख दिया जला लीजिए अपनी महफिल में, लाख दिया जला लीजिए अपनी महफिल में, मगर रोशनी तो आपके आने से ही होती है। These lines perfectly fit our next
speaker, Mr. N.K. Agarwal, who is going to give us a dose of patriotism, which we all will relate to. And we all will take that dose very happily, Mr. N.K. Agarwal. Am I Welcome. audible? Am I audible? Yeah. क्या मेरी सुनाई पड़ रही है आवाज? हाँ जी, पढ़ रहे. Thank you उषा जी for a sweet introduction. And सबसे पहले मैं MRL का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया. आज जो मैं कविता आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ उसके बारे में एक चीज आपसे बताना चाहता हूँ कि इसके साथ मेरा अतीत जुड़ा हुआ है. वो किस तरह? इस कविता की एक दो लाइनें मेरे को किसी ने उस पे व्हाट्सएप में मैसेज भेजी थी और उनको देखते ही मुझे सडनली अपना 50-60 साल पुराना अतीत याद आ गया. जबकि मैं 10th 12th स्टैंडर्ड में था और हिंदी के सिलेबस में ये कविता हमारे सिलेबस में थी और उस समय के रिवाज के अनुसार 10th 12th के स्टूडेंट्स को 2-3 कविताएं कम से कम याद करनी पड़ती थी कंठस्थ. मुझे ये कविता बहुत पसंद आई और ये कविता जो थी हमारे लिए उन्होंने कंपलसरी कर दी थी, ये तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी. तो और ये जो कविता का जो शीर्षक है स्वदेश प्रेम. आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस संदर्भ में मैंने समझा, मुझे विचार आया कि ये शायद काफ़ी उपयुक्त होगी और इसलिए मैं कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ. तो सुनिए, स्वदेश प्रेम. इस कविता के रचनाकार हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही. कविता के बोल हैं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. जो जीवित जोश ने जगा सका उस जीवन में कुछ सार नहीं. जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं. जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं. जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं. जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं. जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं. वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं. वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े पाया जिसमें दाना पानी है. माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी. जिसने की खजाने खोले हैं नवरत्न दिए हैं लासानी. जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं जिस पर है दुनिया दीवानी. जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं जिस पर है दुनिया दीवानी. उस पर है नहीं पसीजा जो क्या है वह भूख का भार नहीं. वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को. है कालदीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को. है लज्जा की ये बात शत्रु आए आगे आंखें दिखलाने को. धिक्कार मर्दगी को ऐसी लानत मर्दाने बाने को. है लज्जा की ये बात शत्रु आए आंखें दिखलाने को. धिक्कार मर्दगी को ऐसी लानत मर्दाने बाने को. सब कुछ है अपने हाथों में क्या तोप नहीं तलवार नहीं. वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. धन्यवाद बहुत बहुत. वेरी गुड अग्रवाल साहब, वेरी नाइस. और ये बात बिल्कुल सच है कि जिस दिल में देश का प्यार नहीं है वो दिल है ही नहीं. ये बात है. So our ancient Granths Mahabharata is a record of human beings and human weaknesses. No person is portrayed as all good or all bad. It teaches us to stand for the right thing and fight for it. Let's see what Madam Lakshmi Ramani has to say about it. She is going to narrate an anecdote from Mahabharata. Let's hear. Lakshmi Ramani. Can you hear me, Usha? Yes, very nice, clear.
Thank you very much, Usha ji. Good evening, friends. Life is not always fair, and we all have experienced unfair treatment sometime or the other. With the help of the conversation which took place between Krishna and Karna just before the start of the Mahabharat war, we can see how both of them were unfairly treated several times in their lives. In Mahabharat, Karna asks Lord Krishna, quote, "My mother left me the moment I was born. Is it my fault I was born an illegitimate child? I did not get the education from Dronacharya because I was considered a non-Kshatriya. Guru Parshuram taught me warfare, but then gave me the curse to forget everything since I was a Kshatriya. A cow was accidentally hit by my arrow, and its owner cursed me for no fault of mine. I was disgraced in Draupadi Swayamvar for no fault of mine. Even Ma Kunti finally told me the truth of my birth only to save her other sons. Whatever I received was through Duryodhana's charity. So how am I wrong in taking his side?" Unquote. Let us ponder over his character for a moment. Life has been unfair to Karna, but he rose above pity and stood as a symbol of the man of exceptional abilities, willing to give his love and life as a loyal friend in spite of being unfairly rejected at every stage by those who should have loved him. Karna's compassion and his generosity for the needy are so well known that we all admire him. Now, let me narrate Krishna's response to Karna, which contains a significant message to mankind. Quote, "Karna, I was born in a prison. Death was waiting for me even before my birth. The night I was born, I was separated from my biological parents. From childhood, I grew up among cattle with cowshed and dung in the surroundings. Multiple attempts were made on my life even before I could walk. I had no formal education, and people complained that I am the cause of all their problems. When all of you were being appreciated for your valor by your teachers, I had not even received any education. I joined Gurukula of Rishi Sandipani only at the age of 16. You are married to a girl of your choice. I didn't get the girl I loved and rather ended up marrying those I rescued from demons. I had to move my whole community from the banks of Yamuna to far off Dwarka to save them from Jarasan. I was called coward for running away. If Duryodhan wins the war, you will get a lot of credit. What do I get if Yudhishthir wins the war? Only the blame that I did not stop the war. Remember one thing, Karna. Everybody faces challenges in life. Life is not completely fair on anybody. Duryodhan also has faced a lot of unfairness in life, and so has Yudhishthir. But what is right is known to your conscience. No matter how much unfairness we got, how many times we were disgraced, how many times we were denied what was due to us, what is important is how we reacted
at that time. Stop complaining, Karna. Life's unfairness does not give you the license to walk the wrong path. Always remember, destiny is created by the steps we take rather than the shoes we wear. Unquote. Dear friends, it is clear from the above narration that not everything was fair and smooth, even in the life of the divine Krishna. Society may not be fair, but the existence is perfectly fair. Unless you do the right things will not happen to you. Thank you. Very nice, Lakshmi. Thank Very you. beautifully narrated. Thank you. These Thank are ageless and eternal anecdotes. Yes, yes. Even our Thank you. future generations will relate with them. Not only us, next generations to come, they will read. They're all ageless. Thank you. हिंदी में एक कहावत है, चिंता चिता समान है. This is so true. Worry always shortens our life. Worry is like a rocking chair. It gives you something to do, but never gets you anywhere. Worry is like that. So, Madam Jaya Prabhu will elaborate on it. She will tell you why you should not worry. And what Am I to do. audible? Am I audible? Yeah, Jaya ji. आइए. थैंक यू उषा दीदी. सभी MRL साथियों को मेरा नमस्कार. एक गांव में एक संत महात्मा रहते थे, जो कि गांव के लोगों को हमेशा प्रवचन वगैरह सुनाते थे, तो गांव के लोग बहुत खुश हो जाते थे. ऐसे ही एक सामान्य सांसारिक आदमी एक बार संत महात्मा जी के पास आता है और कहता है कि मुझे बहुत चिंताएं होती है, मुझे बहुत टेंशन होता है, मुझे कुछ सूझता नहीं है और मैं कभी खुश नहीं रहता, और आपकी जब प्रवचन सुनता हूँ और आपको देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. आपका प्रसन्न चेहरा देखकर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ. तो इसका राज क्या है? आप क्या मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे चिंता से मुक्त हो सकता हूँ? तो संत महात्मा जी कहते हैं, ठीक है, अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता, आप कल सुबह आ जाइए, मैं आपको बताऊंगा. वो आदमी बहुत खुश हो जाता है और घर जाके रात को सोता है. सुबह उठ के जल्दी तैयार होकर वो स्वामी महात्मा जी के सामने आके खड़ा हो जाता है. तो महात्मा जी कहते हैं कि अभी मैं जंगल की सैर करने जा रहा हूँ, जो कि मेरा रोज का नित्य कर्म है. ऐसे ही जंगल में जाकर एक सैर करके मैं वापस आता हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए. वो आदमी उनके पीछे पीछे चलता है. थोड़ी बहुत दूर जाने के बाद में वो संत महात्मा जी एक बड़ा सा पत्थर उठाते हैं, जो कि बहुत भारी रहता है वजन में, और वो आदमी के हाथ में देते हैं और वो आगे चल पड़ते हैं. आगे चलते जाते हैं. ये आदमी सोचता है कि अभी मुझे कुछ मंत्र देंगे, अभी मुझे कुछ बोलेंगे, क्या करना है. तो ऐसे वो जाते रहते हैं. महात्मा जी बहुत दूर जाते हैं, फिर भी कुछ उसको रिप्लाई नहीं मिलता. वो पत्थर उठा के, उसका बोझ उठा के वो बहुत थक जाता है. कभी इस हाथ में, कभी उस हाथ में, कभी सर पर उठा कर जाता है. वो सोचता है मैं नीचे अगर डाल दूं तो महात्मा जी को गुस्सा आ जाएगा, इसलिए वो उठा के चलते ही रहता है उनके पीछे पीछे. बहुत दूर जाने के बाद में महात्मा जी वापस आने के लिए पीछे मुड़ते हैं. मुड़ के देखते हैं तो ये आदमी अभी भी वो पत्थर उठाकर, इतना वजन उठाकर उनके पीछे पीछे चल रहा है. तो उन्होंने कहा, ये पत्थर अभी भी इतना वजनदार अभी भी उठा के आप मेरे पीछे आ रहे हो, आपको तकलीफ नहीं हुई? तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन कैसे रखूं, आपने तो दिया था तो मैं कैसे नीचे रख सकता था इसको. मुझे तो मंत्र चाहिए ना आपसे कि मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, मेरी चिंताएं कैसे मुक्त हो सकती है. तो संत महात्मा जी ने कहा, जब आपको ये बोझ उठाना बहुत मुश्किल हुआ था तो आप उधर ही उसको छोड़ देना चाहिए था ना. मैंने तो नहीं कहा था तुमसे कि ये बोझ उठाकर मेरे पीछे चलो, मैंने उठाया, आपके हाथ में दे दिया. तो आपको सोचना चाहिए था कि अभी मैं इसका क्या करूं, अगर आपसे नहीं उठता तो आप छोड़ सकते थे उसको. ऐसे कहकर वो पीछे वापस आ जाता है. तो उसी में उसको एक ये मिल जाता है कि चिंताएं, जो बोझ जो हम लोग नहीं उठा सकते, जो हमारे बस में नहीं है, उसको वही छोड़ देना चाहिए.
उसको उठाकर जाने से कुछ हल निकलने वाला नहीं है। अगर वो वहीं छोड़ देता वो पत्थर को, वो चिंता को, तो भी स्वामी जी, महात्मा जी तो उसे कुछ कहने वाले नहीं थे, क्योंकि उन्होंने उसे नहीं कहा था कि ये उठा के आप मेरे पीछे चलो। तो जो हमको सही लगता है, जो हमारे दिमाग में आता है, वही हमको करना चाहिए। अभी हाल ही में MRL में एक सेशन हुआ था, जिंदगी गुलजार है। तो जिंदगी गुलजार है, हमें खुश रहना चाहिए, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, हम कैसे अपनी चिंता, हमारे हाथ में है, हमको खुश रहना है, हमारी चिंता कैसे दूर करनी है, वो सब हमारे हाथ में है। जैसे महात्मा जी ने बिना कुछ कहे वो आदमी को एक लेसन दे दिया कि ये ऐसा करने से आपको कितनी तकलीफ हुई, तो आप सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए करके। तो चिंताएं ऐसी है, आप साथ लेके चलो तो वो चलते रहती है, आप अगर चाहो उसे छोड़ दो और दूसरा कुछ, मैं उसके ऊपर कुछ हल निकालू ठंडे दिमाग से, तो आपको उसका उत्तर भी मिल जाता है। तो चिंता करने से कुछ भी नहीं होता। जैसे उषा दीदी ने कहा, चिंता चिता के समान है। तो हम हमेशा खुश रहना चाहिए, हमको हमारी जिंदगी और भी गुलजार बनानी चाहिए। थैंक यू। बहुत सुंदर। बहुत बहुत ब्यूटीफुल। ऐसा बोलते हैं कि वरी इज लाइक वर्शिपिंग द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम जो आ गई है उसको आप वर्शिप करते रहते हो और सोच सोच के, चिंता कर करके उसको और बढ़ा देते हैं हम लोग। तो वी शुड, और अभी जो आ रहे हैं उनके लिए मैं 2 लाइनें बोलूंगी। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूर्ति। किरदार तो देखे हैं बहुत जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत कभी नहीं देखी। लाइफ इज फुल ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स। सम आर स्वीट, सम आर हैप्पी, some are frightening, and some are worrying. Strange experiences we have all the time. ऐसा ही एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हैं मैडम शशि बाला रस्तोगी जी। देखिए वो क्या हमारे साथ शेयर कर रही हैं, क्या एक्सपीरियंस हुआ उनको। आइए शशि जी। नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नमस्कार। और हर शख्सियत जो है वो अपने आप में एक विशेष है, उसमें आप भी हैं उषा दीदी, और हर एक जो है वो अपने आप में विशेष है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए, जैसा कि अभी लक्ष्मी जी ने बताया चुनौतियों के बारे में, तो मैं उस पर ही आऊंगी। जैसे हमारे जीवन में क्या होता है कि बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, हमें उनका सामना हम खुद किस तरह से करें, कभी कभी वो भी हमें बताना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है, और अपने लेवल पे ही हमें उसको हल करना पड़ता है। और जब वो हल हो जाती हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ही मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये हर प्रोफेशन में होता है, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, हर एक के साथ होता है। अभी साथियों आपको पता है 5 सितंबर को हम लोगों ने शिक्षक दिवस मनाया, और 14 सितंबर को अगले ट्यूसडे को हम लोग हिंदी दिवस मनाएंगे। तो मैं आपको हिंदी और शिक्षक का एक मिला जुला अनुभव बता रही हूँ, जो मेरा खुद का अनुभव है। अपने मैंने लगभग 27 साल मैंने शिक्षा देने का काम किया है। ये औपचारिक शिक्षा है, क्योंकि अदरवाइज तो हम सभी एक दूसरे के शिक्षक हैं, लेकिन औपचारिक रूप से जो क्लासेस में जाते हैं, बाहर जाते हैं, बच्चे आते हैं, विद्यालय होता है, तो उस तरीके से मैंने लगभग 27 साल मैंने छोटे बच्चों के साथ मैं रही हूँ, और उनके साथ मुझे बहुत प्यारे प्यारे अनुभव में मिले हैं। बच्चे बहुत प्यार करते हैं आपको, थोड़ा सा उनको डांट भी दीजिए और बाद में उनको आप किसी काम के लिए भी बुलाइए तो वो आपके पास दौड़ के आते हैं। वो उसको इम्पोर्टेंट समझते हैं, महत्व समझते हैं कि मैडम ने हमको बुलाया। तो इसी तरीके से मैं एक अपना बड़ा अनोखा सा ये अनुभव है। ये अभी इसको 10-12 साल हो चुके हैं इस अनुभव को, लेकिन वो मुझे आज भी याद आता है, तो मुझे थोड़ी सी हंसी आती है, थोड़ा सा प्यार आता है उस बच्चे के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि क्योंकि हम लोग मैं उत्तर भारत से हूँ, इसलिए मुझे और विषयों के साथ हिंदी विषय भी दिया ही जाता था। और हमारे कक्षाओं में, सेंट्रल स्कूल में
हर तरीके के, हर भाषा भाषी बच्चे होते हैं, वो जनरली सभी स्कूलों में होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि बड़े अमीर घरों के ही बच्चे हों, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल था और यहाँ ये सबके लिए खोला गया था, ताकि यहाँ पर हर स्तर के बच्चे आकर के पढ़ सकें। तो इसी तरीके से 5th स्टैंडर्ड की मैं आप बता रही हूँ, इनकी क्लास टीचर भी थी और मैं और सब्जेक्ट्स के साथ हिंदी भी लेती थी। उसमें एक महाराष्ट्रियन बच्चा, बहुत ही प्यारा सा, बड़ा खूबसूरत और चंचल, हमेशा चेहरे पर मुस्कान उसके रहती थी, और वो हमारे क्लास में था। सबके लिए वो एक तरह से हीरो था, सब उसको देखते थे और बहुत खुश हो जाते थे। हर काम के लिए आगे आना, और हमेशा उसके, जैसे आपने यहाँ पर बताया कि हमारे आनंद भाई के चेहरे पे मुस्कान रहती है, वैसे ही उस बच्चे के चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती थी। अब होता क्या था कि हम लोगों के यहाँ यूनिट टेस्ट होते हैं, तो पहला यूनिट टेस्ट का जब रिजल्ट आया हमारे पास, बिकॉज आई वाज ए क्लास टीचर, तो मैंने उसमें देखा कि सारे सब्जेक्ट्स में तो वो बहुत अच्छा कर रहा है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, सोशल स्टडीज है, लेकिन हिंदी में उसका डब्बा गोल था। और हिंदी तो मैं ही पढ़ाती थी, इसलिए मुझे बड़ा विचित्र लगा। मैंने कहा सारे बच्चे तो ठीक कर रहे हैं, ये बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है। तो क्लास में मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा कि आप लोग सब लोग, अगर जैसे हिंदी में जनरली मेरे अपने बच्चे भी हिंदी को पीछे ही रखते थे, पता नहीं क्यों। तो उस तरीके से मैंने सब बच्चों को, उसको अकेले नहीं बताया, सबको बताया कि बच्चों, अगर आप लोग और भी हिंदी में भी बहुत अच्छा करेंगे तो आपकी पोजीशन बहुत अच्छी आ सकती है। फिर मैंने उस बच्चे को बुलाया, उसका नाम मैं बता देती हूँ, वो मुझे मालूम नहीं अभी वो कहाँ होगा, जहां भी होगा अच्छा कर रहा होगा, मेरी आशीर्वाद उसके साथ है। उसका नाम था भास्कर। और भास्कर को शुरू में हम लोग जब इंट्रोडक्शन लेते हैं तो बच्चों से उनके नाम के अर्थ भी पूछते हैं। तो मैंने भास्कर को भी बुलाया, क्योंकि वो उसकी हर चीज में उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे, लेकिन हिंदी में बड़ी मुश्किल से वो पास हुआ था। तो मुझे लगा कि नहीं, इसको हिंदी में भी अच्छा करेगा तो ये आगे बहुत अच्छा कर सकता है। तो मैंने उनको अपने पास बुलाया, मैंने कहा बेटे आप इतना अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो हैं वो हिंदी में आप इतना क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको विश्वास नहीं होगा। फिर हमने बच्चों से ये भी पूछा कि आप लोग घर में कौन सी भाषाएं बोलते हैं। सब डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं बोलते हैं, और नेचुरली जो हम लोग घर में बोलते हैं, तो ये हिंदी विषय के रूप में हमको उनको पढ़ाना था, और वो तो हिंदी तो बोलना सभी को आता है। तो वहां पर क्योंकि पाठ्यक्रम में विषय है, इसलिए हमें इस विषय पे उसको ज्यादा मेरा जोर देने का उद्देश्य था। तो मैंने उससे पूछा कि बेटे आपको हिंदी में क्या परेशानी है। आपको विश्वास नहीं होगा, उसने मुझे थोड़ा डरते हुए, थोड़ा संकोच करते हुए उसने बताया, मैडम मुझे हिंदी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और मैं तो एकदम शॉक्ड, एकदम स्तब्ध रह गई। मैंने कहा बेटे आपको हिंदी अच्छी नहीं लगती, क्यों नहीं अच्छी लगती है। तो उसने कहा कि मैडम ये बड़ा मात्राओं का बड़ा गड़बड़ होता है, मराठी में छोटी मात्रा तो उसमें बड़ी मात्रा। और थोड़ी उसको हिम्मत बंधी जब मैंने उससे प्यार से समझाया, उसको लगा कि मैं डांटूंगी नहीं और वो बात कर सकता है। तो उसने कहा कि मैडम ये जो है ना, हिंदी में मात्राओं का बड़ा गड़बड़ है, हिंदी और मराठी में, क्योंकि वो मराठी मीडियम से आया हुआ बच्चा था। फिर मैंने सब बच्चों के साथ उसको सामने बुलाया, मैंने कहा बेटे देखिए इसने सच बोला है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनको नहीं अच्छी लगती, कोई बात नहीं, कारण इन्होंने बता दिया है। अब मैं उनके सामने, बच्चों के सामने बड़े बड़े कवियों और लेखकों के नाम तो ले नहीं सकती थी, जो मुझे उनके ही स्तर पर उतरना था उनको समझाने के लिए। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है बच्चों, आप लोग बताइए, आप लोग फिल्में देखते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा, बड़े खुश हो गए बच्चे कि मैडम क्लास में इतनी स्ट्रिक्ट रहती है, बाहर बड़ी फ्रेंडली है, क्लास में स्ट्रिक्ट है, और आज हमसे पिक्चर की बात कर रही है। तो थोड़ा सा बच्चे खुश हो गए, कहते यस मैडम हम देखते हैं पिक्चर। हमने कहा कहाँ पिक्चर देखते हैं, कौन सी देखते हैं। मैडम हम हिंदी मूवी देखते हैं। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हिंदी मूवी में आपको कौन सा हीरो पसंद है। उन दिनों शाहरुख खान जरा बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे, तो ज्यादातर बच्चों ने बोला शाहरुख खान। तो मैंने, भास्कर हमारे पास ही खड़े थे, और मैंने उनको बोला कि अगर आप क्या बनना चाहते हैं। तो कहते हैं मैडम मैं तो शाहरुख खान की तरह हीरो बनना चाहता हूँ। मैंने कहा यस, तो आप बन सकते हैं, आप सुंदर हैं, अच्छे हैं, स्माइलिंग फेस है,
लेकिन वो तो हिंदी भाषा का है। तो कहते हैं हाँ मैडम वो तो हिंदी भाषा का है, हिंदी तो हम बोल ही लेते हैं। हमने कहा बोल लेना अलग बात है, जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप पिक्चर में काम करना चाहेंगे, हीरो बनना चाहेंगे, तो आपको स्क्रिप्ट जो मिलेगी वो हिंदी भाषा की मिलेगी। उसमें आपको सही उच्चारण बोलने होंगे, उसको समझना होगा और उसको समझ करके उसके हाव भाव उसके अनुसार ही आपको डिलीवर करने होंगे। ये इसके लिए आपको हिंदी का थोड़ा सा व्याकरण, थोड़ी सी हिंदी की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आपको विश्वास नहीं होगा साथियों, उस बच्चे को ये बात समझ में आ गई और उसको वाकई में लगा कि हाँ आज मैडम ने हमसे फिल्मों की बातें करी हैं और और हमें बोल दिया है कि हम बन सकते हैं, तो मैं और सब्जेक्ट के साथ मैडम हिंदी का भी मैं अभी अच्छी कोशिश करूंगा। और इसके कारण, इस वजह से मुझे लगा, मैं ये नहीं कह सकती कि इसी का उसके ऊपर असर पड़ा होगा, लेकिन जो भी था उसके बाद उनका हिंदी में जो परफॉर्मेंस था वो इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया कि फाइनल में उसको 70 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100, जो कि बच्चा शुरू में यूनिट टेस्ट में नहीं कर पाता था। तो ये मुझे लगा ये मेरा अचीवमेंट है और बच्चा आगे बढ़ा, ये मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और आज भी मैं सोचती हूँ तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम एक बच्चा जो है वो समझ गया और बाकी बच्चे भी और उत्साहित हुए और उन्होंने उसको आगे और इसमें भी अच्छा करने की उन्होंने बहुत कोशिश की और बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे फाइनल में मिला। तो मुझे आज भी मैं इस बात को सोचती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है कि कभी कभी हमें हर क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कोई आपसे सामने से बोले कि हमें ये सब्जेक्ट पसंद ही नहीं है, तो उस चीज को जो संभाला और अपने स्तर पे बनाने की कोशिश की, पेरेंट्स से बात नहीं की, कुछ नहीं किया और उस बच्चे में सुधार आया, ये सोच करके मुझे आज भी बहुत तसल्ली मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस यही मेरा प्यारा सा अनुभव था उस छोटे से बच्चे के साथ जो कि 10-11 साल का उस समय था। धन्यवाद। वेरी नाइस। शशि जी के बारे में मैं 2 लाइन और बोलूंगी कि शब्दों के साथ खेलना और उसका सही इस्तेमाल करना कोई इनसे सीखे। बहुत खूब, बहुत खूब। मैडम मैं भी बोलना चाहूंगी कि आज आप वही कर रही हैं, इतने जिसको कहते हैं कि आप गागर में सागर भर रही हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस में भी आप कितना कुछ सबके लिए कह रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। Thank you so much. Our last but not the least speaker is Mr. Chandrakant Rane. Life is a great teacher. We should all be grateful for what it offers to us. एक beautiful thing है वो जो मैंने पढ़ी है, if you want a rainbow, you have to put up with the rain first. क्योंकि रेन के बाद ही आपको रेनबो मिलती है, उससे पहले नहीं मिलती। तो you should always be grateful for that. How we have is a grateful heart. Mr. Chandrakant Rane will explain it. And you should always remember the grateful thing, the gratitude. Mr. Chandrakant Rane. Thank you, madam. सभी को मेरा नमस्कार। आज बात करेंगे ग्रेटिट्यूड और ग्रेटिट्यूड जर्नल के बारे में। ओमप्रा विप्रे जो अमेरिका की एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वुमन और मीडिया पर्सनालिटी है, उन्होंने कहा है कि 16 साल पहले उन्होंने एक ऐसी चीज शुरू की जिससे उनकी पूरी लाइफ बदल दी और वो कहती है कि ये मेरी पूरी लाइफ में सबसे जरूरी चीज है। क्या है वो चीज? वो चीज है अपना ग्रेटिट्यूड, अपना शुक्रिया अदा करना और उसके बारे में लिखना। ग्रेटिट्यूड जर्नल एक थॉट डायरी की तरह होती है। इसे भगवान, प्रकृति और खुद से जुड़े हर व्यक्ति के प्रति उन चीजों के लिए आभार जताना होता है जिनकी वजह से हमें खुशी या सुख मिला हो। इसे हम डायरी की तरह लिख सकते हैं या फिर केवल व्यवहार में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा इमोशन है जो हमें निगेटिविटी से,
पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। इसे हमें अपने जीवन की कई तरह की निगेटिविटी हराने के लिए उपयोग कर सकते हैं। रिसर्च का कहना है कि हमारा जो दिमाग है ये बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत कुछ अचीव कर सकता है, पर हमारा दिमाग एक बारे में एक चीज के ही पर ध्यान लगाता है और वही चीज हमारी लाइफ में बढ़ जाती है। हमें फोकस करना होता है कि हमारे साथ आज के वक्त में जो भी अच्छा हो रहा है उस पर ध्यान दे और उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करें। इसके लिए हमें सबसे पहले खुद पर और अपनी वर्तमान जिंदगी पर नजर डालनी होती है कि हमारे जीवन में निगेटिव चीज कौन सी है। जब हम हमारी निगेटिव चीजें पता चल जाए तो हमें उसमें हटाने का प्रयास करना होता है। इसकी शुरुआत हम ग्रैटिट्यूड जर्नल के साथ कर सकते हैं, यानी हर अच्छी चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने से। स्टील हैवी एक बहुत ही फेमस कोच है, वो कहते हैं कि अपनी जो लाइफ है वो आप आगे तभी बढ़ा पाते हैं जब आप उन चीजों का बहुत आभार मानेंगे और बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जो आपकी लाइफ में अभी है। जैसे कि आप जब किसी को उपहार देते हो, गिफ्ट देते हो, तो अगर जिसको आपने उपहार दिया वो बोलता है वाह थैंक यू वेरी मच, ये कितना सुंदर है, मैं कितना एंजॉय करूंगा, तो आपका मन करता है कि कितना खुश हुआ मेरा उपहार देने से, इसको मैं और देना चाहूंगा। आपकी लाइफ में जितना भी अभी है उसके प्रति आभार प्रकट करेंगे तभी आपको उससे ज्यादा मिलेगा। जैसे ही हम यह ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करना शुरू करते हैं तो हमारा तनाव, चिंता, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना कम हो जाता है। हमारा मन शांत और प्रसन्न होता है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अपने अंदर जो नेगेटिविटी लड़ने के लिए कोपिंग स्किल बढ़ जाती है और नकारात्मक का विचार हम पर जल्दी से हावी नहीं पाता है। कोपिंग स्किल बढ़ने से व्यक्ति के अंदर इथेपी लेवल बढ़ जाती है, यानी वह दूसरे के दुख और दर्द को अपने दुख, तकलीफ की तरह महसूस कर पाता है। इससे पुरानी जो कारण के हुए परेशानी, नुकसान का बदला लेने की जो इच्छा हमारे अंदर रहती है वो कम हो जाती है और व्यक्ति का स्वभाव और सोच सकारात्मक हो जाती है। व्यक्ति का समझ का स्तर भी बढ़ जाता है। इसीलिए इसकी शुरुआत करने के लिए हमें किसी अच्छे वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत अपने जीवन में ढाल देना चाहिए। एक जर्नल की शुरुआत के लिए आपको कुछ अलग या कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी फैमिली, अपनी काम वाली बाई को उनके काम और सहायता के लिए थैंक यू अदा कर दीजिए, थैंक यू बोलिए। ऐसा करने से आपके अंदर सकारात्मकता की वृद्धि होगी। आपका व्यवहार, आपका नजरिया दोनों ही पहले से कहीं अधिक विस्तृत और संभावना से भरे होंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू सर। थैंक यू चंद्रकांत जी, बहुत बहुत बढ़िया। ये सब हमको सीखना चाहिए। लाइफ में गॉड ने, लोगों ने, फैमिली ने हम लोग को क्या कुछ नहीं दिया। We should always be grateful for that. Okay, friends, we have come to the end of this journey. I enjoyed every moment of it. I hope you also had a good time. I want to thank you, all the participants, all the speakers, and all my friends. Thanks a lot. For You all hearing- enjoyed your anchoring, madam. for Very hearing nice.